In my last two lectures, last three rather, on identification, we had done questions on structural form and then also on how to find out the reduced form. Identification was a system of simultaneous equations. But we should know a little bit about the definition of what simultaneous equation is, what is a structural model, what is a reduced model, what is the difference between a structural model and a reduced model, and what is simultaneous equation bias. Now, simultaneous equation models are a type of statistical model in which the dependent variables are functions of other dependent variables rather than just independent variables. So dependent variable function होगा, दूसरा dependent variable का भी function होगा, independent variable का भी function होगा. That is a simultaneous equation. For instance, in a simple model of supply and demand, price and quantity are jointly determined. एक साथ determined होता है. और simultaneous equation model क्या होता है? जहाँ number of endogenous variables is equal to the number of equations. हम लोग अगर इस equation को देखें, यहाँ endogenous variable 3 है, 3, CT, IT, YT, और equations भी है 3. So simultaneous equation model में the number of endogenous variable should be equal to the number of equations. अब स्ट्रक्चरल मॉडल क्या होता है? ये स्ट्रक्चरल मॉडल है. ए स्ट्रक्चरल मॉडल इज ए कंप्लीट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस which describe the structure of the relationships of economic variables. Structural equations express the endogenous variable as function of endogenous variables, predetermined variables and disturbances. मतलब रैंडम वेरिएबल, एरर टर्म. सो ये जो स्ट्रक्चरल मॉडल है, हम लोग देखते हैं एंडोजेनस वेरिएबल किसका फंक्शन है. एंडोजेनस वेरिएबल का भी फंक्शन है. तो सीटी में वाईटी भी है एंडोजेनस वेरिएबल, आईटी में भी वाईटी है, वाईटी में सीटी आईटी है. तो स्ट्रक्चरल इक्वेशन में एंडोजेनस वेरिएबल फंक्शन होगा, एंडोजेनस वेरिएबल का भी फंक्शन होगा, एक्सोजेनस वेरिएबल माने प्री डिटरमिन्ड वेरिएबल जैसे yt-1 एंड gt उसका भी फंक्शन होगा, और डिस्टर्बेंसेस मतलब एरर टर्म का भी फंक्शन होगा, u1 u2 एरर टर्म का भी फंक्शन होगा. और रिड्यूस्ड फॉर्म हम लोग कल निकाले थे. रिड्यूस्ड फॉर्म में क्या हुआ था? जे एंडोजेनस वेरिएबल जो था वह सिर्फ फंक्शन होगा एक्सोजेनस वेरिएबल्स का या प्री डिटरमिन्ड वेरिएबल. एक्सोजेनस वेरिएबल्स का और एक नाम है प्री डिटरमिन्ड वेरिएबल्स. तो रिड्यूस फॉर्म में लेकिन राइट साइड में कोई भी एंडोजेनस वेरिएबल नहीं रहेगा. एंडोजेनस वेरिएबल सिर्फ फंक्शन होगा एक्सोजेनस वेरिएबल्स का. अब डिफरेंस क्या है स्ट्रक्चरल मॉडल और रिड्यूस्ड फॉर्म मॉडल में? द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चरल एंड रिड्यूस्ड फॉर्म has nothing to do with the number of regresses. In a reduced form, you are normally trying to figure out the sign of the causal relationship between variables. In structural, you are trying to estimate the parameters in a model. इसके बाद हम लोग simultaneous equation bias क्या होता है? Simultaneous equation bias occurs when an ordinary least square equation is used to estimate an individual equation that is actually part of a simultaneous system of equations. So simultaneous equation model क्या है? जो ordinary least square regression को हम लोग यूज करते हैं to estimate an individual equation, और individual equation is a part of the simultaneous system of equations. It is extremely common in social sciences. Simultaneous equation bias is very common because almost all variables are determined by complex interaction with each others.
अब हम लोग करेंगे रिड्यूस फॉर्म का एक एक्सेप्शन जो कल बोले थे डिमांड सप्लाई में। हम लोग जनरली क्या करते हैं, लेफ्ट साइड के एंडोजेनस है और बाकी एक्सोजेनस है, लेकिन डिमांड सप्लाई में एक एक्सेप्शन है। अगर हम लोग का रिड्यूस फॉर्म निकाल रहे हैं इसका B0 प्लस B1P प्लस U1 QS इक्वल टू A0 प्लस A1P प्लस A2 PT माइनस 1 प्लस U2 QD इक्वल टू QS ना। इसका अगर रिड्यूस फॉर्म निकालने बोलेगा वो तरीका हम लोग अगर अपनाएंगे, ये लेफ्ट साइड वाला एंडोजेनस, तब तो QD QS एंडोजेनस है, तब तो राइट साइड में कोई भी एंडोजेनस वेरिएबल नहीं है, तब तो यह रिड्यूस फॉर्म नहीं है। लेकिन नो, एक्सेप्शन क्या है, प्राइस जो है, प्राइस राइट साइड में है, राइट साइड में रहते हुए भी इट इज टू बी ट्रीटेड एज एन एंडोजेनस वेरिएबल। सो इसको याद रखना, प्राइस इज टू बी ट्रीटेड एज एन एंडोजेनस वेरिएबल। प्राइस राइट साइड में रहते हुए भी वह एंडोजेनस वेरिएबल है। इसलिए हम लोग का लेफ्ट साइड में रिड्यूस फॉर्म में दो इक्वेशन होगा, एक QD या QS क्योंकि डिमांड सप्लाई इक्वल है, और एक P प्राइस, प्राइस इज एन एंडोजेनस वेरिएबल। तो कैसे इसको निकालेंगे रिड्यूस फॉर्म, इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में QD इज इक्वल टू QS, दोनों को इक्वल करो, एक एरर टर्म और इसको छोड़ सकते हो, B1P इज इक्वल टू A1P प्लस A2 PT माइनस 1, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, P को एक तरफ ले आओ, B1P माइनस A1P इज इक्वल टू A2 PT माइनस 1, P कॉमन, B1 माइनस A1 is equal to A2 PT minus 1. So P becomes A2 PT minus 1 by B1 minus A1. यह एक हो गया हम लोग का reduced form. Price is to be treated as an endogenous variable in spite of its appearing on the right side of the equation. अब इस price को put करो demand में, putting the value of P in QD, B1 into इतना, तो B1 A2 या हो जाएगा A2 B1 PT माइनस 1 बाई B1 माइनस A1। यह हो गया रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन। तो डिमांड सप्लाई वाला और इजी है, तो इसमें लिखोगे 10 रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशंस आर QD इक्वल टू इतना, P इक्वल टू इतना। और एक क्वेश्चन हम लोग डिमांड सप्लाई का करते हैं ताकि और क्लियर हो जाएगा। ये प्राइस जो है वह एंडोजेनस वेरिएबल है। एक गुडसॉन इस किताब में है, पेज 367, QD इज इक्वल टू B0 प्लस B1P प्लस B2Y प्लस U1, QS इज इक्वल टू A0 प्लस A1P प्लस A2 PT माइनस 1 प्लस U2, QD इक्वल टू QS। इसमें एंडोजेनस वेरिएबल है QD या QS और P, और एक्सोजेनस सब क्या बचा, Y और PT माइनस 1। फिर करो इन इक्विलिब्रियम, QD इक्वल टू QS, दोनों को इक्वल करो, तो B1P प्लस B2Y इज इक्वल टू QS A1P प्लस A2 PT माइनस 1। प्राइस को एक तरफ ले आओ, B1P माइनस A1P इज इक्वल टू A2 PT माइनस 1, इसको इधर ले जाओ, माइनस B2Y, P कॉमन, B1 माइनस A1 इज इक्वल टू A2 PT माइनस 1 माइनस B2Y। सो P becomes A2 PT माइनस 1 by B1 माइनस A1 माइनस B2Y by B1 माइनस A1। यह एक हो गया रिड्यूस्ड फॉर्म। अब इस प्राइस को पुट करने होगा डिमांड में, सो QD इज इक्वल टू B1 इंटू इतना, तो हो गया A2 B1 PT माइनस 1 बाई B1 माइनस A1 माइनस B1 से यह गुना होगा, तो B1 से यह टर्म गुना हुआ, B1 से यह टर्म भी गुना होगा, B1 B2Y बाई B1 माइनस A1 प्लस
यह टर्म है b2y, तब ये हो गया a2b1 b1 माइनस a1 pt माइनस 1 माइनस y कॉमन लो तो बचेगा b1 b2 b1 माइनस a1 माइनस b2 माइनस y कॉमन लिए हो ना, तो यहाँ प्लस है तो माइनस माइनस गुना होगा तब प्लस होगा, इसलिए यहाँ माइनस कॉमन लिए हो तो यहाँ भी माइनस होगा। यह हो गया हम लोग का रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन। सो दस द रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशंस आर QD है इतना, P है इतना। We have completed identification. This is a very long and very important chapter. ये हो नहीं सकता है, ये पेपर 15 में है, मॉड्यूल 1 सेमेस्टर 4 पेपर 15 मॉड्यूल 1। आइडेंटिफिकेशन से क्वेश्चन नहीं आए यह संभव नहीं है। एवरी ईयर यू हैव एटलीस्ट 2 और 3 क्वेश्चंस ऑन आइडेंटिफिकेशन। ये चैप्टर ठीक से तैयार करोगे, कोई भी प्रॉब्लम होगा, आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। Tomorrow we shall be starting a new chapter. Thank you.